बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम फेस शोइंग वो जो स्टोरी है वो पढ़ रहे हैं आपकी 7th क्लास की टेक्स्ट बुक इंग्लिश टेक्स्ट बुक से। तो इसमें 3 पार्ट हमने पढ़े, आज हम इसका चौथा पार्ट पढ़ेंगे। तो मैं रिमाइंड करूँगा आपको कि तो जो बीपी सेठी है तब एक छोटा बच्चा था जब रहीम बीबी आई थी गांव में एक नई दुल्हन बनकर। वो बच्चा उसका चेहरा देखना चाहता था, लेकिन दुल्हन ने उसको बताया, "अ, आप मुझे मसानी दे दे, तब आप मेरा चेहरा देख सकते हैं।" तो स्कूल जाते जाते उसको मिला, लेकिन तब भी उसने वो जो दुल्हन थी उसने नहीं उसका चेहरा दिखाया। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ से हम स्टार्ट करना है। Rahim Bibi replied, "No, no, no, no. Not from Chachi. I shall show you my face only when you give Masani out of your own earring. Until then, I will not lift my veil." Rambibi stuck to what she said. For years, she kept her veil. In the next 3 years, I did my 8th class and went to Jammu for further schooling. For Jammu, I went to Surinagar and could not go to the village for another year and a half. I was now 15 and had failed uh, in the 9th class. When I went home during the vacation, I and met Ram Bibi. She asked, "Boji, in what class are you studying now?" "Ninth. Last year also were in the ninth." I felt a loss of words that couldn't bear to stand in front of her and moved away, mumbling yes, yes. All as ill luck would have it, I failed in the ninth class second time and did not go for a whole year. After 3 years in ninth, I got promoted to the 10th, and then went home. I came across Rambi again, and she asked, "Now you must be in college." No, Babi, I'm in 10th now. I'll pass the time and then got a job. I shall arrange for your Masani come from my first pay. No, Bauji, place the first pay at the feet of Chachi. Chachi has to incur a lot of expenses to make offerings to deities. She will purchase things for the puja. Puja. I shall wait for my Masani for another year. Rambibi, I did not know that it would be so difficult to see the face of my own Bobby. Bauji, the more you wait, the stronger will the desire grow. On crossing over to the threshold of youth, the desire to see a face does not go. One wishes one would go on gazing. Up to this time, I had thought that seeing Rambaby's face was a bit of fun, a mere play, but now this desire to see her face took a different gala. I was determined that I would give her Masani out of my own earning. After some years, I was also married, but Rahim Bibi did not lift her veil. I could not give her Masani, and even every now and then, when I met her, she repeated, "Boji, I am not going to lift the veil without having Masani." One day, my wife said, "Why does this Rahim talk to you with such a long veil over her face?" Baby will not lift the veil after she gets Masani from me. As for talking, she talks to me in the same way as Saryu Babi does. यहाँ तक पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नए वर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल इसमें चोर है। चोर होता है स्मॉल रूटीन वर्क, घर का काम होता है, डोमेस्टिक वर्क होता है, स्मॉल रूटीन वर्क, और UTI यानी रूटीन वर्क। उसके बाद पिक्चर है। पिक्चर होता है एन अर्दन पॉट, मिट्टी का बना हुआ बर्तन, एन अर्दन पॉट फॉर कैरिंग वाटर। इसके बाद एक ग्रू होता है ए ग्रुप ऑफ ट्रीज, दरख्तों का एक ग्रुप जो साथ साथ उगाए जाते हैं। ए ग्रुप ऑफ ट्रीज प्लांटेड वेरी क्लोज टुगेदर। इसमें मम्बल है। मम्बल होता है ऐसे बात करना जैसे कि दूसरे को समझ न आए। टू स्पीक अनक्लियरली,
चलो इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो राम बीबी ने उसको रिप्लाई किया, मतलब रिप्लाई किया जब उसने कल बोला कि मैं अपने मदर से बोलूँगा, वो मुझे मसानी देकर मैं आपका चेहरा देख लूँगा। तो राम बीबी ने कहा, नहीं नहीं, आप चाची से नहीं, आप तभी मेरा चेहरा देख सकते हो जब आप अपनी कमाई से मुझे कुछ देकर तभी मैं पर्दा उठाऊंगा, चेहरे से निकाब उठाऊंगा। तो राम बीबी इस चीज़ पे वो तो अटकी रही, स्टक रही वो, कि मैं वेल तब तक ये पर्दा नहीं हटाऊंगी जब तक आप मुझे अपनी कमाई से मतलब दे दोगे, जब तक तुम खुद कमाओगे। तब तो ये बच्चा था, ये बीपी सेठ, मतलब जो सेठी था, ये आथुर था, अभी पढ़ रहा था, आई डिड में 8th क्लास। ये फिर कहता है कि इन द नेक्स्ट 3 years, जो आने वाले 3 साल थे, मैंने 8th क्लास पास किया, फिर जम्मू गया स्कूलिंग के लिए, फिर जम्मू से श्रीनगर गया और स्कूलिंग के लिए। उसके बाद में मतलब 1.5 साल तक गाँव गया ही नहीं। तो तब मैं 15 पहुंच चुका था, मेरी उम्र 15 साल की थी, और मैं 9th क्लास में फेल हुआ। तो तब हमारी वकेशन हो गई, मैं घर चला गया। तो राम रहीम बीबी मुझे मिली। तो रहीम बीबी जो थी, उसने जब वो मिली तो उसने मुझसे पूछा कि आप किस क्लास में पढ़ते हो आज? तो मैंने बोला 9th। बोला, आप पिछले साल भी 9th में पढ़ रहे थे? आई फेल्ट लॉस ऑफ वर्ड्स एंड कुडंट बियर द स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हर। तो मेरे पास कुछ जवाब ही नहीं था, तो मैं उसके सामने मतलब बैठ नहीं सका, तो टिक नहीं सका। तो मैं वहाँ से मम्बलिंग करके चला गया, मतलब मैंने ये बता दिया, तो उसको समझ भी नहीं आया, तो मैं वहाँ से चला गया। तो एज ए इल्स्टिक वुड हैव आई फेल्ड। तो मेरी बदकिस्मती रही कि मैं दूसरी मरतबा भी, सेकंड टाइम, मैं 9th क्लास में फेल हुआ, और फिर इसी साल 9th क्लास में भी रहा। आफ्टर 3 years इन 9th, 3 साल मैंने 9th में गुजारी। फिर मैं 10th में आया, और मैं 10th के बाद मैं घर चला गया। आई कैम अक्रॉस, उसके बाद फिर मैं कैम अक्रॉस मीन्स मतलब किसी से मिलना, अचानक किसी से मिलना। तो मैं रहीम भाभी से फिर मिला, तो उसने मुझे पूछा, अच्छा अब आप कॉलेज में पढ़ते होंगे? तो मैंने कहा, नो भाभी, आई एम इन द 10th नाउ, अब मैं 10वीं में हूँ। तो आई विल पास द टाइम एंड देन गो द जॉब। अब ये जो मैं इसके बाद 10th पास करूँगा, या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मुझसे, तो लेकिन उसके बाद मैं जॉब ही ले लूँगा, कोई ना कोई काम कर लूँगा। आई शैल अरेंज फॉर यूर मसानी फ्रॉम माई फर्स्ट पे। वो जो मेरा फर्स्ट पे है, फर्स्ट सैलरी होगी, फर्स्ट तनख्वाह होगा, पहला तनख्वाह होगा, तो उससे मैं अरेंज कर लूँगा आपके मसानी चेहरे देखने के लिए। नो नो बहू जी, उसने बोला, नहीं नहीं, आप जब आप पहली तनख्वाह लोगे तो जो चाची है, यानी कि आपकी जो माँ है, उसके कदमों के उसके पैरों के मतलब सामने रख लेना। पहली एक्स मंथ की उसने बहुत सारी सफरिंग्स किए हैं, बहुत सारी मतलब तकलीफ़ उठाई आपको पढ़ाने के लिए। आपका जो खर्चा है, सब कुछ आपके लिए मतलब वो खर्चा उठाती है, घर का खर्चा उठाती है। तो मैं, कोई बात नहीं, मैं तो कर लूँगा दूसरी साल के लिए। तब जब अगली पे होगी आपकी, या मतलब कुछ होगा, तो उसके लिए मैं इंतज़ार करूँगी, तब आप मेरा चेहरा देख सकोगी। रैम बेबी, आई डिड नॉट नो व्हाट इट वुड बी सो डिफिकल्ट टू सी द फेस ऑफ माई ओन मॉमी। तो मैंने यहाँ से जवाब दिया, रैम बेबी, मुझे लगता है कि ये क्यों इतना ये मुश्किल होता चला जा रहा है कि मैं अपनी बॉबी का चेहरा भी नहीं देख पाता हूँ। बाबू जी, द मोर यू वेट द स्ट्रॉन्गर विल बी द डिज़ायर ग्रो। तो उसने कहा, रहीम बीबी ने कहा कि आप जितना आप मतलब ये इंतज़ार करोगे, इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत हसीन होती है, बहुत मज़ेदार होती है। तो अ, जितना आप करोगे तब तक जितना आप इंतज़ार करोगे, आपका ये जो डिज़ायर है, आपकी जो ख्वाहिश है, ये तब तक बढ़ती चली जाएगा। और क्रॉसिंग टू द थ्रेशोल्ड, तो उसके बाद मैंने मतलब जवानी के कदम पे, यूथ की कदम, मतलब दहलीज पे कदम रखा। टू डिज़ायर टू सी द फेस एंड डज नॉट गो। ये जो मेरे ये उसका जो फेस देखना था, ये डिज़ायर मुझसे चली नहीं गई, ये एक तमन्ना मुझे अंदर ही रही। Up to this time, I had thought that seeing Rain Baby's face was a bit of fun, a mere play, but now desire to see her face took on different color. तो मेरे मतलब
जब मैं बच्चा था मुझे लगता था ये कोई खेल है, फ़न है कि उसका चेहरा देखूँ, लेकिन जब मैं मैंने यूथ के दहलीज़ पे कदम रखा, अब मुझे लगता नहीं ये डिफरेंट कलर है, इसमें कुछ और ही मज़ा है। आई वाज़ डिटरमाइंड दैट आई वुड गिव हर मसानी। तो मैं मतलब डिटर्मिन्ड रहा। मैंने इरादे बना लिए, पुख्ता इरादे बना लिए कि नहीं, अब मैं ज़रूर अपनी जो फर्स्ट पे है, अर्निंग है, उससे मैं मसाने अरेंज करके लूँगा और उसका चेहरा देख लूँगा। आफ्टर सम इयर्स आई वाज़ ऑल्सो मैरिड। कुछ साल बाद हुए तो मेरी शादी भी हो चुकी, बट रहीम बीबी का, लेकिन रहीम बीबी ने अपना नकाब चेहरे से नहीं उठाया, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। आई कुड नॉट गिव हर मसाने, मैं उसको मसाने दे पाया। और जब वो मुझे मिलती थी तो वो रिपीट करती थी, ये दोहराती थी, "बाबूजी मैं ये जो नकाब है नहीं उठाने वाली हूँ तब तक जब तक ना आप मुझे मसानी दे दोगे।" तो क्या हुआ, वन डे माय वाइफ, एक दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा, "तो आप तो जो रहीम बीबी है, ये आपके साथ जब बात करती है तो उसका चेहरा ढका रहता है, नकाब से ढका रहता है, उसकी ये नाक वील पहनती रहती है।" मैंने जवाब दिया, "रहीम बीबी विल लिफ्ट ओनली, रहीम बीबी तभी अपना ये चेहरा मुझे दिखाएगी, अपना ये क्या है इसका ये मतलब हटाएगी चेहरा, ये हटाएगी ये नकाब, जब तक मैं उसको अपनी पहली मतलब सैलरी से मसाने दे दूंगा। एज फॉर टॉकिंग शी टॉक्स मी।" तो जब ये मतलब ये जब बात करती है तो ये मेरी जो सूर्या बॉबी है, सरिया बॉबी है, ये उसी जैसी बात करती है मुझसे। तो इंशाल्लाह कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बड़ा लेसन है, तो उम्मीद है आप अंडरस्टैंड करते होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।